Good morning student, welcome my computer class. Today I am discuss about the Linux operating system. This is a very important topic of the computer system. So start my topic is that firstly we discuss today is a beautiful thought, the education is the best weapon to change the real world. शिक्षा ही हमारे देश के भविष्य को निर्माण करती है. So start my topic is the Linux operating system. Linux in previous video I told you that the Linux is the operating system. It is the main program of the computer system which control the all activities of the computer. Yeah, we can say that the operating system is the like the brain of the computer. Same brain as like the human's body, the brain control the all processing of the humans. And in the computer system, the operating system is the brain of the computer and which controlled the all processes of the computer system, such as like file management, memory management, device management, ठीक है, and process management and security management. That's the different processing done by the operating system. We discuss about that the Linux. Linux is the very important and best security provider operating system in the real world. All the security system totally dependent on the totally managed by the Linux operating system and developed by the Linux is developed by developed by Linus Torvalds in 1991, and it is advanced version of Unix and Mimix operating system. In previous video we discussed about the features of Linux. I discussed that the features of Linux. First is it is the multi-user. Second is the multitasking. Third is the multi-programming. Fourth is the time sharing. Fifth is the security provider, security management. And there's the different types of feature available with the Linux operating system. I told you that the multi-user means that the multiple user can directly work on the Linux server. Yeah, we can say that the multiple users which is the connect the single Linux operating system, and it control the all the nodes, all the systems by the controlled by the Linux single operating system. Second is the multitasking. If every people's connected सिंगल सर्वर लाइनेक्स सर्वर से अगर कनेक्ट होंगे बहुत सारे पीपल्स, जैसे बहुत सारे लोग आपस में इस डायग्राम के थ्रू देखिए, बहुत सारे लोग आपस में अगर लाइनेक्स सर्वर से कनेक्टेड हैं तो वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे. जैसे यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, यूज़र 3, यूज़र 4, डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं. जैसे यूज़र 1 हमारे पास क्या होगा, यूज़र 1 अगर हमारे पास गेम खेल रहा है, यूज़र 2 सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है, एंड यूज़र 3 वीडियो देख रहा है, एंड यूज़र 4 प्रोग्रामिंग कर रहा है. तो ये डिफरेंट यूज़र डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं. तो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं तो उनको हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं. मल्टी प्रोग्रामिंग दैट्स द सेम पार्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग बट लिटिल मोर डिफरेंट बिटवीन द मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टीटास्किंग मतलब डिफरेंट यूजर perform the different task is the multitasking.
and when a user perform different tasks, a single user perform the different task is known as the multi programming. मतलब जैसे कि अगर ये यूजर डिफरेंट यूजर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे, यूजर 1 गेम खेल रहा है, यूजर 2 सॉन्ग सुन रहा है, यूजर 3 प्रोग्राम कर रहा है, यूजर 4 वीडियो देख रहा है, तो ये क्या, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर कोई सिंगल यूजर जैसे सिंगल यूजर यहाँ पर अगर मैं ऐसे अडॉप्ट करता हूँ, अगर सिंगल यूजर हमारे पास है और ये सिंगल यूजर ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये गेम भी खेल रहा है और टाइपिंग भी कर रहा है या सॉन्ग भी सुन रहा है, तो ये क्या हुआ, मतलब कि एक सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द मल्टी यूजर। क्लियर? तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक सिंगल यूजर अगर मल्टीपल प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग, आई डिस्कस अबाउट दैट, द टाइम शेयरिंग we discuss about that diagram, then you understand what is the time meaning of the time sharing. अगर मैं टाइम शेयरिंग की बात करता हूं तो टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि हर एक कंप्यूटर में जो टास्क होता है, हर एक प्रोसेस को एक डेफिनिट टास्क, एक डेफिनिट टाइम स्लॉट दिया जाता है और उस डेफिनिट टाइम स्लॉट पे वो क्या होता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अगर उस डेफिनिट टाइम स्लॉट पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसको हम लोग भेज देते हैं वेटिंग स्टेट में। सपोज दैट हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया, ये एक डायग्राम ऐसे बना दिया, इधर सीधा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारी प्रोसेस है, मैंने यहाँ पर एक प्रोसेस दे दी, ये P1 प्रोसेस है, एक मैंने P2 प्रोसेस है, एक मैंने P3 प्रोसेस दे दी, ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। इसके बाद देखिए इधर से द रेडी स्टेट, ये हमारे पास रेडी स्टेट है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास रनिंग स्टेट है, ये हमारे पास रनिंग स्टेट है। इसके बाद ये हमारे पास आउटपुट स्टेट है। अब देखो ये अगर इस डायग्राम को हम लोग पूरे डायग्राम की बात करते हैं तो इसको कंप्यूटर में हम लोग बोलते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब होता है, आईपीओ साइकिल का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट जो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं, पी फॉर प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट फॉर हमारा आउटपुट मिलता है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, P1 P2 P3 इन द टाइम ऑफ बूटिंग, जब हमारे पास बूटिंग होता है, बूटिंग, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मीन्स ऑफ बूटिंग। तो बूटिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम की जितनी भी फाइलें होती हैं, इवन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड या जितने भी सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं वो कहाँ स्टोर होती है, वो परमानेंटली स्टोर होती हैं हार्ड डिस्क में। तो जब हम लोग सिस्टम को ओपन करते हैं तो उनकी एक एक कॉपी कहाँ पे आ जाती है, एक एक डुप्लीकेट कॉपी आती है रैम के पास। तो जब रैम के पास कॉपी आती है तो उस समय प्रोसेसर को थोड़ा टाइम टेकन लेता है, तो उस टाइम टेकन को हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो जैसे हमने सिस्टम ऑन किया, सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, P1 P2 P3, ये सारी किस में होंगी, रेडी स्टेट में आ जाएंगी। ये सारी प्रोसेस किस में आ जाएंगी, रेडी स्टेट में। और हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी बेसिस होता है। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब होता है हर एक प्रोसेस को एक टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो उन टाइम ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट होता है तो वो उसका आउटपुट मिलता है, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो आ जाता है वेटिंग स्टेट में। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लिक किया P1 को, P1 कहाँ पर उठ के आ जाएगा, P1 उठ के आ जाएगा, यहाँ से उठ के आ जाएगा रनिंग स्टेट में। अब P1 को सपोज एक टाइम ड्यूरेशन, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेटिंग स्टेट है, जैसे द वेटिंग स्टेट है। अगर हमारे पास P1, मैंने क्या किया, P1 रेडी स्टेट रनिंग स्टेट में है। सपोज दैट P1 को मैंने एक टाइम स्लॉट दे दिया, P1 जो P1 प्रोसेस है, अगर वो 1 मिनट में एग्जीक्यूट नहीं होती है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेती है, तो P1 यहाँ से उठ के अगर वो 1 मिनट पे एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये सीधे चली जाएगी रनिंग स्टेट में, आउटपुट स्टेट में, ठीक है। अगर नहीं होती है, सपोज दैट P1 1 मिनट में नहीं होती है, तो P1 प्रोसेस तुरंत चली जाएगी वेटिंग स्टेट पे। तो यहाँ P1 आ जाएगा, यहाँ से P1 अब हट जाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ से P2, मैंने P2 पे क्लिक किया, P2 यहाँ पर आ जाएगा,
P2 अब रन होना स्टार्ट हो जाएगा। P2 को सपोज दैट एक टाइम ड्यूरेशन, इसको भी मैंने 1 मिनट दिया है, अगर ये 1 मिनट में रन हो जाती है तो यहाँ से ये P2 कहाँ आ जाएगी, ये P2 का हमको आउटपुट मिल जाएगा, दैट इज द P2 का हमको आउटपुट मिल गया। इसके बाद P2 यहाँ से हट जाएगी, इसके बाद फिर वापस से P1 अपने रनिंग स्टेट में चली जाएगी, यहाँ से P1 फिर रन होने के लिए चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पहले एग्जीक्यूट हो चुकी, फिर से हम लोग P3 को डालेंगे तो P3 अब आ जाएगी। अब दो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, अब जो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी वो सपोज दैट P1 एग्जीक्यूट हो गई है क्योंकि पहले से, तो P1 आ जाएगी, इसके बाद यहाँ से P3 आ जाएगी। तो ये टाइम ड्यूरेशन, मतलब ऐसे हमारा IPO साइकिल काम करता है, ऐसे हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ गया, हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टाइम में वो क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। आगे समझे, आई होप दैट टाइम शेयरिंग समझ में आया होगा। और कंप्यूटर का जो IPO साइकिल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन सारी प्रोसेस को मैनेज कौन करता है, अपना OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग टाइम सिक्योरिटी और लाइनेक्स के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।